everyone, this is Sorbina Chakma. Welcome to my YouTube channel of Commerce Class. ओके सो कल हम लोग ने जहाँ तक किया था वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द पॉइंट. सो मूव टू द टॉपिक नाउ. Types of matrix. Yesterday I have taught you about matrix, the definition of matrix, what is row and what is column, about row and column. Already I have shared the basic concept of matrix, what does it means and how many types of matrix are there, that is row and columns, what does the meaning of row and what does it meaning columns. Okay, so now we come to the point, types of matrix. How many types of matrix are there? So there are lots of types of matrix you can get from your book. Okay, so first of all, what we are having, raw matrix. Raw matrix, what does it mean, raw matrix? A raw matrix has only one row but any number of columns. Okay, a raw matrix has only one row but any number of columns. raw matrix का मतलब वो matrix है जिसके पास एक ही रो होता है, जितना भी number of columns हो, लेकिन साथ में क्या होगा, एक ही रो होगा. Okay, a matrix is said to be a raw matrix if it has only one row. कोई एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स को हम लोग तभी रॉ मैट्रिक्स कह सकते हैं जिसके जब उसके पास एक ही रो होगा. ये मैटर नहीं करता है कि कितना कॉलम है उसके पास, बट द थिंग इज दैट कि उसमें एक ही रो होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल आई हैव शोन हियर ए इक्वल टू, आई हैव टेकन 3 नंबर्स 1, 2 and 3. सो हम लोग का इसमें कितना रो है, एक ही रो है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट रॉ मैट्रिक्स ना. सो वी हैव टू सी द रो. हाउ मेनी रो इज देयर, वन रो, दैट इज हैविंग ओनली वन पर्टिकुलर रो and it is having 3 columns, 1, 2 and 3. As I have said you before, columns means the vertical way. Whatever the number is given in a vertical way, we count as a column. Okay, so it is having 1, 2 and 3 in a horizontal way, so that is called row. Always remember that first of all we have to count the row, not column. First of all we have to see the row. After that we have to see the column, how many columns are there. So I have written 1 into 3. Why have I written 1 into 3? Because we are having one row and 3 columns. Okay, so in this way we have to see that raw matrix, the raw matrix has only one row but any number of column. It doesn't matter how many numbers of columns we are having here. So a matrix is said to be a raw matrix if it has only one row, simply. Okay, understood about raw matrix? Clear? So come to the next point, columns matrix. What does the column matrix means? A matrix of order having one column and any rows is called a column matrix. Column matrix उसको कहते हैं, वो matrix को कहते हैं जिसका order क्या होता है, एक column में होता है और जितना भी row हो, as like opposite of raw matrix. Raw matrix, we have studied about raw matrix. Column matrix is just opposite of raw matrix. Okay, column matrix is that a matrix of order having one column and any row is called a column matrix. column matrix किसको कहते हैं, वो matrix जिसका order एक column में होता है. और so ये मैटर नहीं करता है कि column matrix में कितना सारा row हो, ये मैटर करता है बस कि उसमें एक ही column होना चाहिए. column matrix, a column matrix of order having one column and any row is called a column matrix. column matrix वो एक matrix है जिसका order में एक ही column होगा और जितना भी row हो वो मैटर नहीं करता है, is called column matrix. Okay, for example I have shown here a equal to 1, 2, 3. मैंने इसको vertically लिया है, ये तीनों नंबर को vertically लिखा है. तो as I have written in a vertical way, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग always पहले किसको काउंट करते हैं, we count first the row. Okay, what we count first, row. हम लोग पहले रो को काउंट करते हैं. इसमें कितना रो है, ये 1 हो गया, 2, 3, 3 रो हो गया. कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है. So we can, what we can write here, row is given 3, 3 into 1. 3 into 1, why I have written here, because it is having 3 rows and 1 particular columns. इसलिए मैंने क्या लिखा है, 3 रो है इसलिए 3 को पहले लिखा, उसके बाद 1 कॉलम है सो 1 को बाद में लिखा. सो हमेशा याद ये रखना है कि पहले जितना भी रो होगा, रो को पहले लिखना है, उसके बाद हम लोग कॉलम को लिखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? Rectangular matrix. A matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns. What is given here?
अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. कोई भी एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. जब उसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिखाया है. फॉर एग्जाम्पल ए गिवन देयर 1 5 9 2 6 0 3 7 1 4 8 5. What we can say here? How many rows it is having and how many column it is having here. Okay, so you can now say that कितना कॉलम है इसमें और कितना रो है. It is having 3 row and 4 columns. So I have written 3 into 4. मैंने 3 को पहले क्यों लिखा? Because it is having 3 rows. पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 3 को लिखते हैं. उसके बाद कॉलम्स कितना है? 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया. ओके, इज इट क्लियर नाउ? सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है आपको. यस और नो? जीरो किसको कहते, जीरो और नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक द डेफिनेशन. सो a zero or null matrix is defined as and when the every element of a matrix is zero. Okay, the matrix is called a zero or null matrix. Element, what is the meaning of element? What is the meaning of element here? A equal to कितना दिया है? 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0. So each and every zero, हर एक पर्टिकुलर जीरो को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल इसमें भी नंबर दिया है इक्वल टू 159 260 371 485. तो इसके अंदर जितना भी पार्टिकुलर एक एक नंबर है वो हर एक नंबर को हम लोग एलिमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एलिमेंट. ओके, सो सेम हियर इट इज गिवन देयर जीरो और नल मैट्रिक्स. अ जीरो और नल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज एन व्हेन द एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो. जीरो और नल मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब ए इक्वल टू कितना होता है, उसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सभी जीरो होते हैं. वही मैट्रिक्स को हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव शोन देयर ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स? होप सो यू हैव गॉट द पॉइंट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5. पॉइंट नंबर 5, दैट इज कंपैरेबल मैट्रिक्स. So in comparable matrix what we have to see here, comparable मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है आपको, कोई भी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ को कंपेयर करना. ओके, compare matrix A and B are comparable as both are of the same type 2 into 3. ओके, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? एग्जाम्पल A का दिखाया मैंने, ठीक है, इसमें A दिखाया. A and B are comparable as both are of the same type. ए और बी दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं. whereas ए एंड सी आर नॉट कंपेरेबल एज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. देखते हैं क्या होता है. सो ए का मैंने क्या लिया है? 1 2 3 5 7 6 8 4 9. इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स इट इज हैविंग? इट इज हैविंग 3 rows and 3 columns. So I have written there. So come to the next point of equal matrix. Equal matrix, the element in the corresponding positions of the two matrices are equal, that is A4 equal to B4 for all, that is I. So A it is showing here 3 2 7 1 8 0. इसमें दिया है A2, it is A. Okay, don't think it as a 9. It is A 2 7 1 B and C. So यहाँ पे एक A के अंदर, A मैट्रिक्स के अंदर सभी नंबर दिया है. It is not giving any, it has not given any kind of alphabet here. It is all it is shown as a number. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है. ओके, A B C है, 2 1 7 है. सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 के जगह पे क्या है? ये A है, 7 की जगह पे 7 है, 8 की जगह पे B है, 2 के जगह पे 2 है, 1 के जगह पे 1 है, C के जगह पे 0 है. सो what we can say that if A equal to 3, क्योंकि A की जगह पे ये 3 है, because all the other positions what it is having in the other position that is same 7 1 and 2, it is having 7 1 and 2 in the same way. Okay, so in the place of A what we can write here? 3, because in the place of A it is given here 3, in the place of B it is given there 8, and in the place of C it has given here 0. So if A equal to 3, B equal to 8 and C is equal to 0, so it is called equal matrix. Okay, it is called
equal matrix. Got a point? So coming to the next point, that is square matrix. Square matrix. A square matrix has the number of columns equal to the number of rows. एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से इक्वल होता है. जिसका नंबर ऑफ कॉलम उसका नंबर ऑफ रो से इक्वल होता है, वो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव शोन हियर A equal to 1 6 9 5 8 3 7 2 4. That is, it is having 3 rows and 3 columns. That's why I have written here 3 into 3. Okay, got it? So next is diagonal matrix. Diagonal matrix. If all the elements of a square matrix are 0 except those in the leading diagonal. इसमें क्या होगा? बस डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह पे 0 होगा. डायगोनल मतलब यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल. डायगोनल किसको कहते हैं? ये सीधा लाइन को होता है, ये सीधा लाइन होता है डायगोनल, और बाकी सब जगह पे 0 होता है. ये एक कॉलम हो गया, ये भी एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया. सिंपल डायगोनल में क्या दिया? A11 A22 एंड A33. यहाँ पे 3 रो दिया है और 3 कॉलम दिया है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 3 into 3. सो इन द प्लेस ऑफ डायगोनल एक लाइन पे, एक सिंपल डायगोनल लाइन पे क्या दिया? A11 A22 एंड A33. बाकी सब जगह पे यहाँ पे 0 दिया है. सो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स होता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल. लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सब मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. सो 3 रो दिया है, 3 कॉलम दिया है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3 into 3. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका जहाँ पे ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जहाँ पे ये डायगोनल जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये डायगोनल यहाँ पे अलग अलग नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे बस जो डायगोनल दिया होगा वो डायगोनल में सेम नंबर बैठेगा. यहाँ पे डिफरेंट नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर. ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स और रेगुलर मैट्रिक्स में बस यही डिफरेंस है. स्केलर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो होता है सभी इक्वल होता है. इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. ओके, गॉट द पॉइंट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. And I hope you guys will like this video. And if you do like, then please share, like and give valuable comment, and please don't forget to subscribe the channel. And I hope so you have understood what I have taught today. So उम्मीद कर सकती हूँ. हाँ, लेकिन आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर बेटर वे. ओके, सो बाय बाय, कल मिलते हैं. सो या बिफोर लिविंग द चैनल आई वांट टू से दैट कल जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उस टाइम में ट्राई करूँगी कि मैं एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व कर दूँ. ओके, सो बाय बाय.